Good morning students. Today we will be continuing with our next lecture of motion in a plane. That is, we are doing the vectors concept. So today's first concept is resolving the vector into its rectangular components. Resolving a vector into its rectangular components. Resolving means we are dividing or we are breaking a vector. Resolving means we are breaking a vector. Suppose you have thrown a ball from here and ball has moved like this. Okay, at any time t, ball is there. It is having velocity in this direction also, and it is having velocity in this direction also. Due to this velocity, it is moving in the forward direction, and due to this velocity, it is moving in the upward direction. The ball at any instant is having two velocities. One velocity is acting in this direction, velocity is a vector, and one velocity is acting in upward direction. This is also a vector. But ball is moving in this direction. But actually the ball is moving in this direction. So this is the resultant velocity. So this is the component of velocity in horizontal direction. Because some part of the velocity is acting in this direction and some part of the velocity is acting in this direction. Component of velocity in horizontal direction. And component of velocity in component of velocity in vertical direction. Okay, suppose the component in a horizontal direction, I am representing it by a vector. Okay, and the component in vertical direction, it's a vector, so I am representing it by v vector, and resultant is in this way, resultant vector. So this is resultant vector. So this is a case, ball is thrown and it follows the drawn motion. The motion we have drawn, it is following. So at any instant, a component of velocity is acting in horizontal direction and a component of velocity is acting in vertical direction. Due to this component, इस component की वजह से बॉल इधर को जा रही है और इस component की वजह से बॉल ऊपर को जा रही है. सो बॉल इधर को भी जा रही है और बॉल ऊपर को भी जा रही है. सो ये दो component एक्ट कर रहे होंगे किसी भी समय पे. पर रिजल्टेंट वेलोसिटी का किधर होगा? बॉल एक्चुअल में इधर को जा रही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी. सो इसका कुछ हिस्सा इधर है और कुछ हिस्सा इधर. मतलब ये अगर 100% है तो हो सकता है 60% इधर हो, 40% इधर. सो दिस इज अ रिजल्टेंट कंसेप्ट. सो इफ दिस इज अ बी वेक्टर, ओके, अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ. सो sorry, we will apply the parallelogram law. This is A. Okay, if this is B, this is also B. Okay, and join A to B. What is this? This is resultant. So resultant, two sides of a triangle, same order, and resultant is a side of a triangle in opposite order. Resultant is equals to A plus B.
So this is the resultant. That means resultant is made of two vectors. One is A, one is B. So resultant is made of two components. One is A, one is B. I can say that it is a component of a resultant in x-axis, and this is a component of resultant in y-axis. So resultant, we can say like that, resultant is equals to component of resultant in x-axis, vector component of r in x-axis plus vector component of r in y-axis. So we have resolved, so we have broken a vector into its two rectangular components. So this is resolving a vector into its rectangular components. Okay, what is the angle between A and B vector? 90 degree. So what is the angle between Rx and Ry? 90 degree. So what will be the value of resultant? You know, if two vectors are at theta degree, what is the resultant? A square plus B square plus 2ab cos theta. Put here 90 degree. So this term will become 0. So what will be the resultant? So resultant value will be equals to under root A square plus B square. What is the value of A? What is the value of A? Rx square. What is the value of B? What is the value of B? Is equals to Ry. So this is the magnitude. Okay, if means you have given a vector, means if you have resolved a vector into its rectangular components, na, the magnitude of R, this is vector R and this is its magnitude. Okay, so the magnitude of vector R is given by under root Rx square plus Ry square, because on that day we have done this parallelogram law of vector addition. How we are finding a resultant when two vectors are at theta degree inclined to each other. If A is a vector, B is a vector, they are at theta degree to each other, but this is the way of finding the resultant. So resultant is here, A and B. One component of resultant is this, one component of resultant is this. resultant का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, दोनों हिस्सों में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है. तो अगर यहाँ 90 पुट करो, क्योंकि A और B में अब 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो होता है, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी. रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट कंपोनेंट दी स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट दी स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकंड कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? Rx से, और सेकंड कंपोनेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? Ry से. सो Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज दी so this is known as the resolving a vector into its rectangular components. So this topic is resolving the vector. So a vector can be represented as addition. So this is a vector, ठीक है? So what you can say, a vector can be represented as a addition of its two rectangular components. एक वेक्टर को हम कैसे एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? एडिशन ऑफ इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड so a vector can be represented by addition. ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. बाय एडिशन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. This is the final version, resolving a vector into its two rectangular components. So हम एक वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं इस मतलब पूरे में. Okay, now the concept is like this. We will follow up. Okay, so the concept will move like this. So this is arm, okay, and its one component is in this direction. This is Rx,
and its one component is in this direction, ry. Okay, like this. So here they are making angle of 90 degree. Suppose the resultant is making an angle theta with one of its components. ये दो component है ना resultant के, एक component के suppose मान लो result बना रहा है, this is also ry, you know this. तो हम इसको भी ry लेते हैं, तभी हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है. तो इसको लेना है, चाहे हम इसको नहीं भी लेना तो ना लो, कंप्लेक्शन पैदा करता है, तो वी कैन लीव इट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ rx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ry? ओके, सो दिस इज r वेक्टर, ओके, एंड द मैग्नीट्यूड इज r. द मैग्नीट्यूड ऑफ r इज r. You can say this, it's a r. Okay, this is rx, this is ry. I have written the magnitudes. Now take this angle. This is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse. Okay, so what is the value of a Pandit Badri Prasad हर हर बोले सोना चांदी तोले? So what is the value of base upon hypotenuse? Base is rx. What is hypotenuse? Hypotenuse is r. Base upon hypotenuse is cos theta. Okay, and what is the value of rx? Rx is equal to r cos theta. So this is the value of rx. Similarly, perpendicular upon hypotenuse is sin theta. What is perpendicular? ry. So what is hypotenuse? r. So what is the value? Sin theta. So what is the value of this ry? Is equals to r into sin theta. So you know, if this is r, okay, this is r, and this is its first rectangular component, and this is its second rectangular component. This is rx and this is ry, and it is making angle theta. जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बन रहा होगा, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बन रहा होगा वो rx है. rx की वैल्यू कितनी है? r cos थीटा. ये कंपोनेंट रहेगा r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट रहेगा r sin थीटा. ओके, सो इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? r cos थीटा, और इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? r sin थीटा. इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं. मान लो वो का एक फोर्स है, फोर्स का वेक्टर है, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और एक ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है. तो फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मान लो हॉरिजॉन्टल वाले के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री या 90 बना रहा है, मान लो 30 डिग्री बना रहा है मान लो. ये फोर्स है, इसको हमने ब्रेक कर लिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में. ये फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस, ये फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सेस. सो हमसे अगर कोई पूछे भी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो एफ वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, और थीटा कितना है? एफ कॉस 30. सो इसकी वैल्यू कितनी रहती है? इसकी वैल्यू कितनी रहती है? आर कॉस थीटा. अगर ये आर है तो ये होगा आर कॉस थीटा, अगर ये एफ है तो ये होगा एफ कॉस थीटा. ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू पुट कर लो. सपोज 1 उसने फोर्स की वैल्यू मान लो 100 दी हमें, तो यहाँ 100 पुट कर लेंगे, और कॉस 30 की सपोज वैल्यू आ गई 1/2 सपोज, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू आएगी 50. ऐसे निकालते हैं हम. अगर ये एफ कॉस थीटा है तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना होता है? वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना है? आर साइन थीटा. आर यहाँ आर नहीं है, यहाँ फोर्स है, तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स साइन थीटा. जिसके साथ थीटा बन रहा है, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बना उसको एफ कॉस थीटा लिखना है, जिसके साथ नहीं बन रहा उसको एफ साइन थीटा. एफ की वैल्यू कितनी है? 100, तो साइन 30 पुट कर दो. ओके, सपोज इसकी वैल्यू आती है मान लो √3/4 सपोज, तो ये कट हो जाएगा कितना? 25√3. सो इस तरह से हम क्या ढूंढ पा रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं.
So this is a way of finding the rectangular component. So what is the value of rectangular component? Rx is equal to r cos theta and ry is equal to r sin theta. So we have come to the conclusion. We have find the value of two components. If this is r na, and this is its first rectangular component, and it is making theta with this rectangular component, and this is its second rectangular component. The value of this component will be r cos theta, and value of this vertical component will be r sin theta. ये सारी जगह हम ऐसे ही करेंगे. कई बार हम मान लो हमको कोई हमने सपोज फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक रोलर पड़ा है, रोलर बड़ा सारा, जो मान लो हमारा एक प्लेग्राउंड है, ओके, वहाँ पे रोलर पड़ा हुआ है. रोलर के हैंडल पे हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी, ऐसे करके, और रोलर मूव हो गया इस डायरेक्शन, ओके. डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन. तो फोर्स कितना कंपोनेंट बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ? थीटा. अब फोर्स का, अब ये वाली फोर्स नहीं लग रही है रोलर पे, इसकी वजह से मूव नहीं हो रहा है. फोर्स के दो हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा ऊपर को लग रहा है. ऊपर वाला फोर्स का हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोलर ऊपर को मूव भी नहीं हो रहा है, रोलर तो उधर को मूव हो रहा है. सो फोर्स का ये कंपोनेंट कितना रहेगा? फोर्स इसके साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा. तो इधर एक्ट कर रहा है एफ कॉस थीटा. फोर्स का ये कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और फोर्स का ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा. तो एफ साइन थीटा कोई फोर्स नहीं लगा रहा है रोलर पे, क्योंकि रोलर तो ऊपर को उड़ ही नहीं रहा, रोलर तो इधर को जा रहा है. सो इधर को जा रहा है तो कौन सी फोर्स लगेगी? एफ कॉस थीटा. सो एफ कॉस थीटा फोर्स लग रही है, एस डिस्प्लेसमेंट हो रही है. फोर्स कितनी लग रही है? सो रोलर पे कौन सी फोर्स लग रही है? एफ नहीं लग रही है, एफ का एक हिस्सा लग रहा है, उससे एफ हिस्से का नाम है एफ कॉस थीटा. एफ कॉस थीटा लग रहा है. कितनी डिस्प्लेसमेंट? एस. और ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है? वर्क डन. सो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा. ऐसे फॉर्मूला आता है, ये यहाँ लगता है प्रैक्टिकली. हम रोलर को ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे करके, जैसे ट्रैक्टर को लगाते होते हैं ऐसे. वी पुश द ट्रैक्टर, यहाँ से ट्रैक्टर मूव करता है ऐसे. सो वी पुश द कार. इफ योर फादर सेज पुश द कार, यू पुश लाइक दिस एंड इट मूव्स लाइक दिस. Okay, so this is a way, this is resolving a vector into its rectangular components. So this is done. So first topic is done. Topic name is resolving a vector into its rectangular components. हर वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन सकते हैं. एक्स एक्सिस वाला होगा आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस वाला होगा आर साइन थीटा. याद रखना है, दो कंपोनेंट बनेंगे. एक ये बनेगा एक्स एक्सिस के लॉ, एक ये बनेगा आर के. सो आर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आर का? अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स? आर एक्स वैल्यू इज आर कॉस थीटा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वाई? दिस इज आर साइन थीटा. तो ये सारे का overall conclusion है. This is a vector and these r x and r y are its this rectangular components of this vector. जैसे बॉल पे फोर्स लग रही है, बॉल जहाँ इधर को रही थी, पर एक फोर्स इधर को लग रही थी, एक इधर को लग रही थी. सो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे. जो बॉल के ऊपर वेलोसिटी थी, एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट इधर था. सो यही होता है. तो हम ब्रेक किया करेंगे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टुडे सेकंड कंसेप्ट, यूनिट वेक्टर. व्हाट इज दिस यूनिट? यूनिट मीन्स वन. सपोज दिस इज ए वेक्टर, ओके. सपोज इट्स मैग्नीट्यूड इज 5. सपोज दिस इज 5. It is having this direction. Arrow represents the direction. So you just take a vector, its magnitude is 1,
this is also a vector, its magnitude is 1, it's having the same direction as that of A. This vector is having magnitude of 1. मान लो ये क्या है, ये पेरेंट वेक्टर है, पेरेंट वेक्टर, और इससे ये बेबी पैदा हुआ है मान लो, तो पेरेंट वेक्टर क्या है, बड़ा है, बेबी वेक्टर क्या है, एक मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन वही है. सो वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन सेम हो पेरेंट वेक्टर की, तो वो पेरेंट वेक्टर का क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है. यूनिट वेक्टर बनता पेरेंट वेक्टर से, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है पर डायरेक्शन सेम वही होती है जो पेरेंट वेक्टर की. यूनिट वेक्टर is having a magnitude of unit, is having a unit magnitude and same direction as that of parent vector. So unit vector ki this is a definition. Unit magnitude, same direction as that of parent vector. So if A is a vector, vector is represented by this way na. So unit vector is represented by A cap. A cap. If someone writes A cap, that means A cap is a unit vector of A. ये A वेक्टर है, उसका A कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है. तो यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ही बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी उसका 1 होता है. सो इट जस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, विद डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. ओके, यू नो दैट वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड बोथ बाय डायरेक्शन. सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू राइट अ मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. और ए की डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा. सो अ रियल वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैप, सो ए कैप इज इक्वल्स टू रियल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर divide by its magnitude. So the value of unit vector is equals to vector divided by its magnitude. So this is the value of unit vector. Okay, so first of all definition. So a cap is equals to a vector upon a magnitude. Vector is equal to magnitude into direction. What is magnitude? This is the magnitude of A. What is direction? Direction is given by unit vector. Because unit vector is having a unit magnitude and it only gives information about the direction. So this is first concept, unit vector. Suppose this is x-axis, you know, and this is y-axis. This you all know. Okay. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Z-axis. But I will draw like this because it's a 3-dimension. Okay. So this is z-axis, x-axis, y-axis, z-axis. This is 1x, 2x, 3x, 4x. Okay.
Suppose a vector is there which is having unit magnitude, and same direction as that of x-axis. X-axis is having this direction. Suppose a vector is there which is having unit magnitude and same direction as that of x-axis. Physics call it as I cap. So I cap is a unit vector which is having a magnitude of 1 but having same direction as that of the x-axis. So I cap is a unit vector in the direction of x-axis. This is jx, y-axis na. Suppose this is unit magnitude. So a vector which is having unit magnitude and same direction as that of y-axis. So what is this? Unit vector of y-axis. That is j cap. J cap is a unit vector in the direction of y-axis. Okay, and what is the unit vector in the direction of z-axis? It's k cap. Unit vector in the direction of z-axis. So इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग? Suppose एक resultant vector is there and it is made of two components. One is rx and one is ry. Suppose we have resolved a vector into its two rectangular components. Suppose एक component इधर है, एक component इधर. Suppose मैंने ऐसे लिख दिया 5i cap plus 2j cap is equals to r. तो इसका मतलब क्या है? 5 is a magnitude. It's a magnitude. और i क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा. तो ये भी क्या बन गया? एक वेक्टर. वेक्टर प्लस वेक्टर क्या है? दो कंपोनेंट हो गए वेक्टर के. ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड. तो ये क्या बताएगा? डायरेक्शन. अब आई कैप कौन सी डायरेक्शन बताता है? आई कैप एक्स एक्सिस में डायरेक्शन बताता है. जे कैप कहाँ डायरेक्शन बताता है? वाई एक्सिस में. तो 5 किधर की तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है. तो 5 यूनिट किसकी तरफ है? ये वेक्टर एक्स एक्सिस. मान लो 5 कहाँ बनता है हम देखते हैं. सपोज इट्स 1 2 3 4 5. तो 5 किधर की तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है. यहाँ ये हो गया. तो ये क्या बन गया? 5 आई कैप. ये वाला. सो ये क्या बन गया है? 5 आई कैप. ओके. 2 जे कैप. 2 कहाँ बनेगा? 1 यहाँ और 2 यहाँ. सो ये क्या बन गया? 2 जे कैप. मतलब एक वेक्टर यहाँ बन चुका है 5 आई कैप और एक वेक्टर ये बन चुका है 2 जे कैप. सही है. तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? हमने देखा है रिजल्टेंट. पैरेललोग्राम लगा लाओ. तो ये भी क्या बनेगा? 2 जे कैप. तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा. दिस इज रिजल्टेंट. और इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस प्लस दिस. इसकी वैल्यू निकलेगी 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप. So where will be here? 5 here from 2 here. So it will be here. The resultant will be here. And it will be equal to 5 I cap plus 2 J cap. क्योंकि resultant किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा है Rx plus Ry. So Rx कितना है? 5 I cap plus 2 J cap. तो इससे हमें पता लगता है भी 5 इधर है और 2 इधर है. सो यहाँ पे आ जाए. 5 इस तरफ है, 2 इस तरफ है. तो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा. सो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. अगर आई कैप लिखा है तो इस डायरेक्शन में 5 बढ़ो. जे कैप लिखा तो इस डायरेक्शन. जहाँ पे एंड हो गया वो रिजल्टेंट होगा. 5 इस डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में. यहाँ पे होगा रिजल्टेंट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप. लाइक दिस.
and you know, if you want to find the magnitude of this resultant, I have told you what is the way of finding the magnitude. Under root a square plus b square. What is a square? Rx. What is ry? So what is the magnitude of along rx? सिर्फ magnitude कितना है? 5. डायरेक्शन नहीं देखनी, अब मैग्नीट्यूड देखना है 5. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सेस? 2. सो 5 की स्क्वायर 25, 2 की स्क्वायर कितना आएगा? 4. दिस इज 29. सो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 29. सो दिस. सो आगे से हमें वेक्टर्स ऐसे लिखे आएंगे 5i कैप 2j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला करेंगे, ठीक है। और आपको पता लग गया अभी आई कैप का मतलब क्या है, 5 इस डायरेक्शन में है, जे कैप का मतलब 2 इस डायरेक्शन में। आई कैप ये डायरेक्शन बता रही है, जे कैप ये डायरेक्शन बता रही है। 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप लाइक दिस। सो 5 इधर आगे बढ़ो, 2 इधर आगे बढ़ो, दैट इज 5 आई कैप प्लस जे कैप, यूनिट वेक्टर। सो दिस इज अ वे। हमने यही पढ़ा था ना भी, अगर एक आर वेक्टर है उसको हमने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, एक एक्स एक्सेस के लॉन्ग, एक वाई एक्सेस के लॉन्ग। तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? फर्स्ट की स्क्वायर प्लस सेकंड की स्क्वायर। फर्स्ट के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड क्या है? आर एक्स, सेकंड का मैग्नीट्यूड क्या है? आर वाई। सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ स्क्वायर किसकी लेनी है? मैग्नीट्यूड की स्क्वायर लेनी है हमने, अगर हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। पर वो हमें दिया क्या है, कैसे दिया था? 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। So this is not a magnitude, this is a direction. आई एक्सेस बताता है 5 एक्स एक्सेस की तरफ है, 2 वाई एक्सेस की तरफ है, ये भी डायरेक्शन बता रहा है। सो इससे पता क्या लगेगा हमें? 5 किधर बढ़ना है? एक्स एक्सेस की तरफ, और 2 किधर बढ़ना है? मान लो 2 इधर है और 5 किधर बढ़ना है? इधर, यहाँ पॉइंट आएगा। तो ऐसे ही करते थे ना हम एक्सेस में, हमें मैडम कहती 2 3 प्लॉट करो, तो हम 2 इधर जाते होते थे और 3 इधर जाते थे और कह देते थे 2 3 यहाँ है, तो हम यही कहेंगे 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये यहाँ है, ये वाला, ये वो चीज़ होगी, ये रिजल्टेंट हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो इस फॉर्मूले से। सो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? पहले का आर एक्स वाले का मैग्नीट्यूड क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड। तो 5 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस? 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। अगर हमें कोई कहे ड्रा करो तो ड्रा ऐसे कर सकते हैं, अगर कहे कोई मैग्नीट्यूड ढूंढो तो ऐसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे, उलझने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। सो सेकेंड कंसेप्ट, suppose a ball is there, like it is moving like this, you know, and one velocity is acting on ball in this direction and one velocity is acting on this direction. This is V applied, जो हमने अप्लाई किया। This is V of air, पर जहाँ बॉल इस डायरेक्शन में। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इधर है, एक V अप्लाई है और कंपोनेंट बन गया उसका, एक कंपोनेंट ये हो गया उस वेलोसिटी का और एक कंपोनेंट ये हो गया, ओके। सपोज सो सबसे पहले आपको मैंने सिखा दिया भाई आई कैप, जे कैप और के कैप का मतलब क्या होता है। ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है और ये जेड एक्सेस होती है। मान लो आपने किसी ने लिख दिया आपको भाई एक कोई वेक्टर है दुनिया में, वो 3 तो आई कैप की तरफ है, 4 जे कैप की तरफ है और 5 के कैप की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है? 3 इधर जाओ, 1 2 3, सही है। 4 ऊपर जाओ, 1 2 3 4,
और 5 इधर को आओ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे होगा वो वेक्टर, यहाँ पे z एक्सिस ये होती है। जो मान लो एक तीर लगाओ, ये तीर किस में घुस गया, बोर्ड में, तो ये तीर की क्या है, पॉजिटिव z एक्सिस, 1 2 3 4 5, ये z एक्सिस के पॉजिटिव है। और तीर जो उस दीवार में गया है उस तरफ क्या होगा, 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ, ठीक है। सो ऐसे सपोज ये तीर का हिस्सा कहाँ है, जो बोर्ड में है, जो बोर्ड के बाहर है, और ये कहाँ है, बोर्ड के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 z एक्सिस का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, ये नेगेटिव बन, ये नेगेटिव z एक्सिस बन जाएगी, जैसे ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है और ये नेगेटिव x एक्सिस। तो ऐसे मान लो मैंने क्या कहा, z एक्सिस क्या होगी, तीर लगा दो किस में, मान लो कोई तीर छोड़ा तो ऐसे घुस जाएगा बोर्ड में। सो ये z एक्सिस का क्या, ये z एक्सिस बन जाएगी, z एक्सिस का 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, पर उधर क्या है, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ऐसे। आपको किसी ने कह दिया ये कोई वेक्टर है, तो ये क्या कहता है, कुछ इसका ऐसा x एक्सिस की तरफ भी है, कुछ इसका ऐसा y एक्सिस की तरफ भी है, कुछ इसका। तो ये क्या होता है, पहले वाला ये मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या बताता होता है, डायरेक्शन। सो तीनों तरफ है, तो इसको सौखा ही है, इसको कैसे कर सकते हैं, 3 x एक्सिस की तरफ जाओ, 1 2 3, 3 चले गए x एक्सिस की तरफ। अब 4 कहाँ जाना है, y एक्सिस, 1 2 3 4, यहाँ पहुँच गए, ये भी नहीं है। अब 5 किसकी तरफ जाना है, z एक्सिस की तरफ, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट होगा वो वेक्टर। अब ओरिजिन को कहाँ मिला दो, उस पॉइंट से, मान लो यहाँ बन गया वो पॉइंट, तो हम ऐसे मिला लेंगे ओरिजिन को, ये बनेगा वो वेक्टर, 3i कैप 4j कैप 5k कैप। ये सपोज करो 3D व्यू है, ये यहाँ पे बने, ओके। सो ये एक वेक्टर दिया है, मान लो उन्होंने हमें v अप्लाइड दे दिया, मान लो कितना दे दिया, उन्होंने दे दिया हमें 2i कैप 3j कैप -4k कैप। मान लो ये जो वेक्टर है, तो ये है v अप्लाइड, और v एयर एक वेक्टर तीनों कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्पेस में है ना ये पॉइंट, स्पेस में। तो ये हमें दिया है i कैप, मतलब 1i कैप -j कैप, मतलब -1j कैप +2k कैप। So what is the resultant velocity? We know that resultant velocity is equals to component of x plus component of y. This is resultant velocity. It is made from both the components. We know parallelogram law. What is the component v applied? So what is vy? V here. What is the value of v applied here? 2i cap 3j cap -4k cap. Okay, and I cap -j cap +2k cap. हमने उस दिन भी पढ़ा था वेक्टर सेम नेचर के ऐड होते हैं, डिफरेंट नेचर के ऐड नहीं होते। आई और आई का नेचर क्या है, सेम है, क्योंकि वो एक ही तरफ एक डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। ओके, पर आई और जे कैप का नेचर और है, आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, जे इस डायरेक्शन में, ये ऐड नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे। सो 2i कैप प्लस आई कैप, इकट्ठे कर लो कैप कैप वाले, जे 3j कैप -j कैप -4k कैप +2k कैप। So what is this? How many I caps? 3i cap. What is this? 3j cap -j cap 2j cap. So what is this? -2k cap. Plus minus minus. So this is the resultant velocity vector. Okay? तो ऐसे पता करते हैं हम resultant velocity vector. This is vector in 3 dimensions. Space में ऐसे लिखते हैं। तो ये हम वेक्टर लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर्स की मदद से। ओके, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी बन गया। अब रिजल्टेंट बना है, अगर मैग्नीट्यूड ढूंढना है इसका, सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड। फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड 2, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड -2, सो व्हाट इज दिस 9 4, व्हाट इज दिस 4 9 4 13 13 4 √17. So magnitude of this is
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज √17। आपको वो कहेंगे हमने v दे दिया, मैग्नीट्यूड आपने ढूंढ लिया, ठीक है। v 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, तो v कितना है ये पता करो, ये कर लिया। v का मैग्नीट्यूड कितना है पता करो, और इसका यूनिट वेक्टर पता करो, इसका यूनिट वेक्टर। आपको सिर्फ v दिया था, आपको उन्होंने कहा भाई v के 2 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट दे दिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा v के 2 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट दे दिए, v पता करो, कर दिया। v का मैग्नीट्यूड पता करो, कर दिया। अब v का यूनिट वेक्टर पता करो, v का भी तो कोई यूनिट वेक्टर होगा, हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, जैसे a है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है ये छोटा, तो इसका भी यूनिट वेक्टर पता करो। यूनिट वेक्टर पता करने का तरीका है वो ऑलरेडी गिवन, यू भी कैसे पता करते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ओरिजिनल वेक्टर क्या है v, और उसको किससे डिवाइड करना है, उसके मैग्नीट्यूड से, तो वो आपको क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ v, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो लिखो v वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, तो मैग्नीट्यूड कितना बना √17, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ v। अब इसको आई कैप के नीचे लिख दो, जे कैप के नीचे लिख दो, के यहाँ छोड़ना तो यहाँ छोड़ दो, ये यूनिट वेक्टर आ जाए। तो ऐसे हम पता करेंगे। हमें कहा गया एक बॉल है, उस पर 2 कंपोनेंट लग रहे हैं, पता करो रिजल्टेंट वेक्टर कितना है। रिजल्टेंट दोनों का जोड़ होता है, जोड़ कर दिया। सेम नेचर के जोड़ेंगे, आई में जे नहीं जोड़ सकते, याद रखना, आई में आई जोड़ सकते हो, ओके। वेक्टर्स जो होते हैं ना सेम नेचर के ऐड हो जाते हैं सीधे सीधे ऐसे। सो दिस इज़ द वे ऑफ यूनिट वेक्टर्स। So next topic, note down next topic. Next topic name is multiplication of vectors.